Good morning to everyone. A very good morning. Dear students, we'll continue the same chapter, the red trap. Today, I hope all of you are fine and best in your spirits. It's a very fine day today, Monday, as the sun is shining outside. Maybe you are also shining and studying nicely at home. Just we'll wait 1 minute, and after that, we'll start our chapter. Very good morning. Good morning. Good morning. All of you must open your Flamingo textbooks and we'll have to start further reading today. Would any of you will like to tell me from where we will start today? Page number and paragraph number. Page number 35. Good. The second para. That's nice. Page number 35, para number second. All of you have to open it. Yeah, Ramjo Ironworks. Some of the students' assignments I have checked, and students were writing wrong spelling of Ramjo. So you have to check it in your assignment again. Some of you have written the wrong one, spellings of Ramjo. Some assignments I will check today. Some I have already checked. Some students have written spelling of tobacco roll wrong. Spelling of tobacco roll. They have written ROLE. So would you like to tell me what will be the spelling of roll? Who is going to type? Yeah, this one is ROLL, but some students maybe by mistakenly have written ROLE. So that is wrong one. And you must check the spelling of Ramjo also. Okay. So many students were writing wrong. And one question was there, petty, PETTY. Petty means small, insignificant, or trivial. But some of you were writing odd. So that is not the right answer. According to the chapter, meaning of petty is small, or you can say insignificant or trivial. So you have to go through it. Okay. Spellings as well as word meanings. Word meanings must be checked by you people. So let us go through next para. Para is from Ramjo Ironwork. We'll have to continue from Ramjo Ironwork. Let us start now. Is there any problem? Shubham, you are raising your hand. Okay, let us read today's chapter. The Ramjo Iron Work which are now closed down. जो Ramjo Iron Work था, फैक्ट्री थी, वो अब बंद हो चुकी थी. Which are now closed down were not so long ago. अगर हम पहले की बात करें, a large plant, वो एक बहुत ही बड़ा सा प्लांट था, with smelter जिसमें मेल्ट किया जाता है आयरन को, rolling mill and forge. Forge means workshop. In the summertime, long lines of heavily loaded barges and scows. Barges and scows means boats. Boats को बोलते हैं barges and scows. Slid down the canal, which led to a large inland lake. जो एक large inland lake से होती हुई वहां पे पहुंचती थी. किस तरह से? Let me clarify you what actually they are telling us. They're telling in the summertime, long lines of heavily loaded barges and scows slid down the canal, which led to a large inland lake. Means a kind of canal was there, and if it is a factory, so large inland lake was being made from that canal to slit down the material or charcoal.
इस फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए जो कैनल है, यहाँ से इनलैंड लेक को यूज किया जाता था उस फैक्ट्री तक चारकोल को पहुंचाने के लिए। मींस वाटर ट्रांसपोर्ट, यू कैन से वाटर ट्रांसपोर्ट वाज बीइंग यूज्ड फॉर द कैरिंग ऑफ दैट मटेरियल टू दिस फैक्ट्री। सो क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि वर्किंग बताओ, समर टाइम में वर्किंग कैसी होती थी फैक्ट्री में, एंड इन विंटर टाइम ऑल्सो। सो द आंसर विल बी इन दिस पैरा। लेट अस फाइंड आउट। In the summertime, long lines of heavily large inland lake, loaded barges and scows led down the canal, which led to a large inland lake. And in the winter time, the roads near the mill were black from all the coal dust it was, which sifted down from the big charcoal crates. So, what usually they do in winter? Not in winter, but in summer. In summer, they use road transport. So, means from road transport, the material was being transported, and these roads were totally turned black from the charcoal as it is being carried from these roads. Na? That's why. So let us go through once again. In winter time, the roads near the mill were black. In winter time, it was, sorry. On the contrary, it was in winter time, as it is chill winter, so that is why they used road transport. And in summer time, as it is very hot, so they use water transport. Okay, contrary, you must remember it. Yeah, sifted down the big charcoal crates. Now next passage. During one of the long dark evenings just before Christmas, the uh, master smith and his helper, a new character entered here, Master Smith, owner of the Ramjo Iron Works. Master Smith and his helper sat in the dark forge. Forge means workshop, near the furnace, waiting for the pig iron. What do you mean by pig here? Raw iron, which had been put up in the fire, जिसको फायर पे डाला गया था, to be ready to put on the anvil. What do you mean by an anvil? Anvil is a kind of a large sheet. It can be in the form of square, it can be a round also. Kind of iron sheet, बड़ी सी एक शीट होती है लोहे की, जिसके ऊपर फर्नेस में से, भट्टी में से लोहे को मेल्ट करने के बाद इसके ऊपर रखा जाता है और फिर उसको डिफरेंट शेप्स जो है वो दी जाती है. तो दैट इज कॉल्ड एनविल. नेक्स्ट वन. एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप. तो दोनों में से एक खड़ा होता टर्न बाय टर्न टू स्टिर होता है मूव द ग्लोइंग मास विद द आयरन लॉन्ग आयरन बार. तो उस आयरन बार से, लंबी सी लोहे की छड़ से उस भट्टी में जो उन्होंने रॉ आयरन डाला है उसको वो चेंज करते, कभी आगे पीछे करते. रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, ड्रिपिंग विद प्रेस्पिरेशन, पसीने से वो बिल्कुल निचुड़ जाते. दो एज वॉज द कस्टम मीन्स राइट और रिचुअल, ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज. तो उन्होंने क्या पहना हुआ था? वुडन शूज पहने हुए थे एंड एक लॉन्ग स्लीव जो है वो शर्ट जो है वो डाली हुई थी. और उसके बाद क्या हुआ? All the time there were many sounds to be heard in the forge. What do you mean by forge? Tell me. Workshop. Okay, you can speak even, dear, as it will take a lot of time to write the answers. You can even respond at once. Okay, forge means workshop. So the big bellows groaned and the burning coal cracked. Okay, bellows means here talking with the different sounds. So the big bellows groan वैसे हिंदी में इसको कराहना बोलते हैं, यहाँ kind of sound है. ग्रोन्ड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, और जो जलता हुआ कोल होता है, कोयला होता है, वो अंदर उसके टूटने की आवाज बाहर आती है. यहां से भी क्वेश्चन पेपर में बनता है कि कौन कौन सी साउंड्स जो है वर्कशॉप्स में से सुनाई देती थी. तो एक तो यही होगी. सेकंड, द फायर बॉय शॉवल्ड पुश्ड चारकोल इनटू द मा, MAW होता है मा, माउथ, द मा ऑफ द फर्नेस होता है फायरप्लेस, भट्टी, विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर इज काइंड ऑफ साउंड. आउटसाइड, अब ये तो थी अंदर वाली साउंड्स वर्कशॉप के अंदर, ठीक है. अब चलते हैं बाहर.
आउटसाइड रोअर्ड दी वाटरफॉल, और जो वर्कशॉप के बाहर वाटरफॉल, झरने की गिरने की, पानी के गिरने की आवाज, एंड ए शार्प नॉर्थ विंड whipped द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ। तो क्या बता रहे हैं वो, एक तो फैक्ट्री के अंदर, वर्कशॉप के अंदर जो साउंड आ रही है कोल के क्रैक होने की, भट्टी के मुंह में जो कोयला क्रैक हो रहा है जलने के बाद, एंड सेकंड जो फायर बॉय पुश कर रहा है कोल को वो अंदर नीचे, उसकी साउंड आ रही है, एंड द वाटरफॉल आउटसाइड, वाटरफॉल की साउंड आ रही है, और जो रेन से, हवा से बारिश की जो बूंदें हैं उसको वो क्या कर रही है, उसके ब्रिक टाइल्ड रूफ पर लेके गिरा रही है, जिसके कारण एक साउंड वो भी बाहर से प्रोड्यूस हो रही है। तो नाउ आई एम गिविंग यू 1 minute ओनली टू रीड ऑल दीज 3 पैरास, एंड आफ्टर दैट आई विल आस्क द क्वेश्चंस quickly with the 1 minute only. Second para, third during one, and fourth one all the time. Take a quick reading. May I ask the questions now? Sweating बच्चे, sweating, perspiration means sweating, पसीना। Bellows beach means बच्चे stalking, stalking up with the bellows, जो kind of you can say stick is there ना, which means by which means they used to stir the iron, that is bellows. Anvil is a kind of iron sheet. Anvil is a kind of iron sheet on which iron is being beaten, जिसके ऊपर आयरन को पीटा जाता है, उसको शेप दी जाती है। ड्रिपिंग निचुड़ना होता है बच्चे, ड्रिप, ड्रिप से वर्ड बना है ड्रिपिंग, पानी निचोड़ना उसे ड्रिपिंग कहते हैं। एनविल आई हैव टोल्ड ऑलरेडी। क्रेट, क्रेट नहीं होते जिसमें आप सिंपल लैंग्वेज में, जैसे आपने देखा होगा वो कोल्ड ड्रिंक्स नहीं डालते क्रेट में ताकि उसमें उसको बैलेंस में बनाए रखा जा सके, तो वैसे ही वो क्रेट एक बड़ा सा डिब्बा होता है, कंटेनर जिसे कह सकते हैं, जिसमें चारकोल को डाल के जो है वो ट्रांसपोर्ट या इधर उधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा सकता है। डिब्बा हिंदी में सिंपल लैंग्वेज में दैट इज क्रेट, जिसमें उसको डाल के लेके जाया जाता है। So let us move forward and the questioning will be done later on. Now kind of sounds we have prepared here, listened here. It was probably means likely on account of all this noise that the blacksmith, blacksmith means iron smith, ऊपर हमने पढ़ा जो ऑनर है रामजू आयरन वर्क्स का, blacksmith did not notice that a man had opened the gate। ये blacksmith है, वो आयरन स्मिथ है, वो ऑनर है, ये पर्सन वहां पे वर्कर है, ब्लैकस्मिथ। ध्यान रखें, हमने करेक्टर्स जो जो पढ़े हैं जल्दी से बताइए कौन कौन से करेक्टर अभी तक इस चैप्टर में पढ़े। नंबर 1 इज, सबसे पहले किसका पढ़ा हमने करेक्टर, रेड ट्रैप सेलर, एंड सेकंड पे बताइए, सेकंड पे किसका पढ़ा हमने, रेड ट्रैप करेक्टर नहीं है बच्चे, सेकंड इज ओल्ड क्रॉफ्टर, ओल्ड क्रॉफ्टर हमने पढ़ा। उसके बाद रेड ट्रैप सेलर के लिए वैसे इन्होंने डिफरेंट वर्ड भी यूज किए हैं यहाँ पे हमने पढ़ा एक आयरन मास्टर,
आयरन मास्टर का भी मेजर रोल नहीं आया, जिसकी वो फैक्ट्री है, जिसका वो ऑनर है। और हमने पढ़ा ब्लैक स्मिथ, जो कि वहां पे वर्कर है, ब्लैक स्मिथ। एक हमने पढ़ा फायर बॉय, जो कि उसका हेल्पर है। ये ब्लैक स्मिथ और फायर बॉय ये दोनों वहां पे काम कर रहे हैं। ये आयरन मास्टर फैक्ट्री का ऑनर है, ठीक है जी। हमने ओल्ड क्राफ्टर तो हमने पढ़ ही लिया, जो कि पहले वहां पे काम करता था, ओल्ड क्राफ्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये करेक्टर्स अभी तक हमने इसमें रीड किए हैं। चलिए आगे चलते हैं। इट वॉज probably on account of all this noise that the blacksmith, ये सारे शायद आवाजों के कारण ही, शोर के कारण ही ब्लैक स्मिथ ने नोटिस नहीं किया दैट अ मैन हैड ओपन द गेट एंड एंटर्ड द फोर्ज, कि एक व्यक्ति ने दरवाजा खोल लिया है एंड ही हैज एंटर्ड इन द वर्कशॉप until he stood close up to the furnace, और उसको तब तक नहीं पता चला जब तक वो फर्नेस मींस फायर प्लेस, भट्टी के पास आकर खड़ा नहीं हो गया। कौन खड़ा हुआ पास में आके, जल्दी बताइए। नॉट रेट्रैप, रेट्रैप सेलर, रेट्रैप तो बच्चे कास्ट होता है, नेट होता है, जाल तो ना खड़ा होगा वहां पे आके। रेट्रैप सेलर, रेट्रैप को बेचने वाला सेलर, वो खड़ा हुआ वहां पे आकर, ये आपको वहां पे बताना है, ठीक है। चलिए, रेट्रैप सेलर को अदरवाइज बच्चे बहुत सारे वर्ड यूज किए हैं चैप्टर में, जैसे हमने वेगा बॉन्ड भी पढ़ा, और भी बहुत सारे वर्ड अब नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे, अब ये नेक्स्ट पेजेस पे। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes and to come into the warm themselves in front of next page, in front of the fire. तो first let us find out the meaning what actually they want to ask here. They are telling us that कहते ये यूजुअल है, कोई अनयूजुअल बात नहीं है, क्योंकि ये जो पुअर वैगाबॉन्ड्स है ना, ये जो घूमने वाले हैं, वॉन्डरर्स हैं, इनको कोई भी बेटर शेल्टर नहीं मिलेगा नाइट को स्टे करने के लिए, क्योंकि ये अट्रैक्टेड हो जाते हैं वर्कशॉप में से ग्लो जो निकलती है लाइट की, यानी कि फायर की, विच एस्केप्ड थ्रू द सूटी पेन्स, जो उनकी सूटी पेन्स यानी कि जो उनकी कॉन्शियसनेस है, जो उनकी अंतरात्मा है, उसको ये आराम मिलता है, कंफर्ट जोन में वो आ जाते हैं। एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्व्स, और अपने आप को वो गर्म करने के लिए, यानी कि थोड़ी गर्माहट देने के लिए, इन फ्रंट ऑफ फायर, आग के आगे आ जाते हैं। जैसे आजकल आपने देखा होगा, जब कोल्ड इतनी चल रही है, ठंड चल रही है, तो आप जहां कहीं भी आग लगी होती है, तो आप अपने आप ही वहां पे अट्रैक्ट हो जाते हो जाने के लिए, अपने हाथ को और अपनी बॉडी को वार्म करने के लिए। इन द सेम मैनर इट हैपेंड विद द रेड ट्रैप सेलर। नाउ नेक्स्ट पेज। द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड ओनली, ग्लैंस्ड क्या होता है जल्दी से बताओ फटाफट, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लैंस्ड? We'll see the first answer. Okay, to see the amount of mentioning looked. Okay. Better to speak hurriedly, क्योंकि रिटर्न में किसी का भी आंसर जल्दी आ सकता है, स्पीकिंग में पता चलेगा कौन बच्चा जल्दी आंसर रिस्पॉन्ड करता है। द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर, इंट्रूडर होता है जो बिना परमिशन के अंदर एंटर कर जाता है, उसे इंट्रूडर कहते हैं। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ दिस टाइप यूजुअली डिड, तो वो वैसे ही देख रहा था जैसे उस टाइप के लोग दिखते थे। विद ए लॉन्ग बियर्ड, लंबी सी बियर्ड। अभी ये फीचर्स आ गए, करेक्टरिस्टिक्स ट्रेट आ गए कि वो कैसे दिखता था। लंबी सी बियर्ड, डर्टी गंदी सी, रैग्ड फटे पुराने उसके कपड़े, एंड विद अ बंच ऑफ रेड ट्रैप्स, और गुच्छा एक उसका रेड ट्रैप्स का, डेंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, डेंगलिंग मींस हियर मूविंग, जो उसकी चेस्ट पे मूव कर रहा था। He asked permission to stay and the master blacksmith nodded. तो सॉरी, तो उसने परमिशन मांगी स्टे करने के लिए मास्टर ब्लैकस्मिथ से, उसने नोट कर दिया उसको, हॉटी कंसेंट, प्राउडली कंसेंट, कंसेंट मींस टू गिव परमिशन without honoring him with a single word, means he hasn't spoken a lot of words or communicated with him, instead of it he just has given him permission to stay at night. दी ट्रैम्प, आगे देखिए एक और वर्ड आ गया, वेगाबॉन्ड, वेगाबॉन्ड भी पढ़ा हमने, ट्रैम्प भी पढ़ा, और एक इससे पहले हमने पढ़ा रेड ट्रैप सेलर। डिड नॉट से एनीथिंग, उसने कुछ भी नहीं कहा। इधर ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, क्योंकि वो वहां पे बात करने के लिए नहीं आया है, बल्कि अपने आप को थोड़ा सा वार्म करने और सोने के लिए आया है।
In those days, the Ramcho iron mill was owned by a very prominent. Okay, now let me know who is going to tell me what do you meaning of prominent. Well known. Okay, very good. Prachi has responded quickly. Some of you are writing like famous. Okay, okay, okay. I'm checking how many of you are participating and how many of you are just listening as passive. You should interact a lot of, okay? Interaction is must. Dear students, in the beginning, I think 2 3 days back, one notification was being sent in the WhatsApp group that Pariksha Pe Charcha contest is being started for all of you. So there are different topics, essays to write it down. So you can participate even in that competition. For more information, you can ping me up. Otherwise, you can also go through CBSE website, cbse.nic.in. It is highlighted in the form of notification, Pariksha Pe Charcha contest. So if you think you can write down your own views and your suggestions, creations, so you can participate in that competition. And for any kind of queries, you are most welcomed. I can try to solve at instant. Okay, so go through it. Try to be all rounder instead of only academic. You should try to participate in each and every event. Okay, now let us come back. Prominent, very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट वाज हिज ग्रेटेस्ट एम्बिशन, उसकी सबसे जो मेन एम्बिशन थी आयरन मास्टर की वो क्या थी, तो आंसर इज टू शिप आउट गुड आयरन इन द मार्केट. He watched both night and day to see that the work was done as well as possible. And at this very moment, he came into the Forge means workshop, on one of his nightly rounds of inspection. So, as his aim was to produce good quality of iron, so that is why he usually take a round of his factory, either it is day or sometimes at night also. So he entered in the forge or in the workshop or in the iron जो राम जो आयरन वर्क फैक्ट्री. सो उसने क्या देखा, अपनी नाइट राउंड ऑफ इंस्पेक्शन पे वो आया था. तो देखते हैं क्या हुआ. नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वाज द टॉल रैग मफिन. अगेन एक वर्ड रेड ट्रैप सेलर के लिए यूज किया गया. इससे पहले हमने कौन कौन से वर्ड पढ़े, जल्दी से बताओ. वैगाबॉन्ड. और भी पढ़ा. यस, ऑल ऑफ यू मस्ट लर्न इट. इवन पैडलर भी पढ़ लिया, रेड ट्रैप सेलर भी पढ़ लिया, वेगाबॉन्ड भी पढ़ लिया. ये सारे वर्ड्स हमने इसके लिए पढ़े. ठीक है, अब एक नया वर्ड आ गया रैग मफिन. ओके, जिसने रैग यानी कि डर्टी क्लोथ्स वगैरह डाले होते हैं. हु हैड ईज्ड होता है कंफर्ट. हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस. उसने अपने आप को कंफर्ट लेवल में लाने के लिए बिल्कुल वो फर्नेस के पास जो है वो लेटा हुआ था. दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स. तो उसकी जो भाप है, स्टीम है, वो उसके गीले कपड़ों से रोज रिजन उठ रही थी. द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ. आयरन मास्टर ने ब्लैक स्मिथ के एग्जाम्पल को फॉलो नहीं किया. अच्छा, कौन बताएगा मुझे कौन सी ये एग्जाम्पल बता रहा है वो, विच एग्जाम्पल ही इज आस्किंग और मेंशनिंग. Why iron master and blacksmith are not the same one? Hurry up, who is going to tell me? As he is telling us here, the iron master did not follow the example of the blacksmith. Yes, Sahat is mentioning here. Harsh has written down. Okay, that is nice answers. That blacksmith was not bothered about his condition and not even asked any questions from him. But now, if we talk about Iron Master, now let us find out what he has done. So he has mentioned here, the Iron Master did not follow the example of the blacksmith who had hardly designed, doesn't means here stoop, STWP, to look at the stranger. He walked close up to him. वो उसके पास को जाता है. Looked him over very carefully. उसको बहुत ध्यान से देखता है. Then tore off, वैसे तो फाड़ना होता है, यहाँ पे साइड को हटाना. Tore off his slouch hat. Slouch means kind of dirty.
हैड यूज के लिए यूज किया गया है इन अ लेजी मैनर, और आप इसको स्लाउच को बोल सकते हैं इन अ लेजी मैनर। स्लाउच हैड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, और उसके उस हेड को साइड को हटा देता है ताकि वो उसके फेस को बेटर तरीके से देख सके कि ये व्यक्ति जो है वो है कौन है। नाउ लेट अस फाइंड आउट। But of course, it is you, Neil Soloff! Sign of exclamation. He said, "How you do look?" तो इस सेंटेंस से क्या पता चलता है आप लोगों को, जल्दी बताओ। ये बोला किसने, पहले ये बताओ, ये सेंटेंस किसने बोला है? Iron Master. ओके, एनीथिंग एल्स, एनीवन एल्स who has spoken this sentence and to whom? आर्यन मास्टर ने बोला, तो बोला किसको, बोला किसको ये? वेगाबॉन को बोला है, रैगमफिन को बोला है, पैडलर को बोला है, ट्रैम्प को बोला है। ओके ओके, सभी को वोकैबुलरी आ गई है ना, ठीक है, सबको पता चल गया। अब इस सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन है, इससे क्या प्रूव क्या हो रहा है? एक्सक्लेमेशन से क्या प्रूव हो रहा है? व्हाट एक्सप्लेनेशन इज टेलिंग अस हियर? सरप्राइज्ड? हाँ, तो इसे इसे ये पता चल रहा है कि ही गॉट शॉक्ड, आर्य मास्टर गॉट शॉक्ड आफ्टर लुकिंग एट हिम, सो इट मींस ही वाज फैमिलियर और अनफैमिलियर टू हिम। दोनों में से बताओ एक वर्ड, फैमिलियर और अनफैमिलियर। Familiar. Unfamiliar. Unfamiliar. Some of you are speaking unfamiliar, some of you are speaking familiar. Now I will tell you later what the exact answer will be. Familiar. Some students are mentioning unfamiliar. Okay, the right answer is familiar. इससे सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि वो उसका फैमिलियर था, तभी उसने उसको देखकर वो शॉक हुआ। अगर अदरवाइज अनफैमिलियर होता तो वो उसको इतना एक्सक्लेमेशन साइन नहीं लगता यहाँ पे, तो उसको बस देख के थोड़ा या तो इग्नोर कर देता या क्वेश्चनिंग करता। लेकिन उसने वो जब ये बोला कि तुम ये कैसे लग रहे हो, नील सॉलॉफ नोबल मैन के लिए यूज करते हैं, अरे तुम, ही सेड हाउ यू डू लुक, तुम ये कैसे दिखाई दे रहे हो, तो यानी कि वो उसको जानता था। अब वो कौन है या उसको वो कैसे जानता है, लेट अस फाइंड आउट। The man with the red traps had never before seen the Iron Master at Ram's show and did not even know what his name was. जो व्यक्ति वहां रेड ट्रैप सेलर वाला था, वो उसने कभी उस व्यक्ति को नहीं देखा था, आयरन मास्टर को, राम जो आयरन वर्क में, और ना ही उसको जानता था what his name was, कि उसका नाम क्या था। But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, acquaintance होता है known या familiar, an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner. तो उसने बोला कि अगर बाई चांस ये मुझे कोई अपना फैमिलियर मान रहा है या जान रहा है, तो क्या पता ये शायद क्या करे, कुछ कपल ऑफ क्रॉनर्स मुझे दे दे, मेरे पर तरस खाकर, दया करके। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव, डिसीव धोखा देना, अनडिसीव बिल्कुल भी आइडेंटिफाई ना करवाना, हिम ऑल एट वंस, तो उसने सोचा कि मैं इसको अभी एकदम से अनडिसीव नहीं करूंगा, बताऊंगा नहीं कि वो रियल में कौन है। यस, गॉड नोस थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद मी, ही सेड। बताओ ये सेंटेंस किसने बोला? Paddler. भी पैडलर ने बोला है, किसको बोला है ये? आयरन मास्टर को। कहता हाँ हाँ, कहता क्या बताऊं मैं, भगवान ही जानता है कि मेरे साथ कुछ चीजें थोड़ी रॉन्गली जो है वो गलत साबित हुई। अब आगे चलते हैं लास्ट में। यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, तो उसने बोला कि तुम्हें अपने रेजिमेंट से रिजाइन नहीं देना चाहिए था,
ये आयरन मास्टर ने उसको बोला कि तुम्हें रेजिमेंट से रिजाइन नहीं देना चाहिए था, दैट वाज द मिस्टेक, ये तुम्हारी गलती थी। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट दैट टाइम, अगर मैं अभी भी उस सर्विस में होता उस समय से, इट नेवर वुड हैव हैपेंड, तुम्हारे साथ में ये कभी नहीं होने देता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, चलो अब छोड़ो, अब ऐसा करो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। To go along up to the manor's house, manor's house means here a kind of large house, यानी कि आर्य master's house, and he and be received by the honor, और honor के द्वारा receive किया जाना, like an old regimental comrade, comrade the friend, that however did not please the tramp, लेकिन ये ट्रैम्प को अच्छा नहीं लगा, यानी कि वैगाबॉन्ड को अच्छा नहीं लगा। अच्छा अब कौन बताएगा उसको अच्छा क्यों नहीं लगा? अगर रेड ट्रैप सेलर को आयरन मास्टर ने अपने घर पे बुलाया कि तुम मेरे घर चलो और हम तुम्हें वहां पे बातचीत करते हैं और कोई हेल्प होगी तो वो भी देंगे, तो रेड ट्रैप सेलर क्यों नहीं जाना चाह रहा है वहां पे? ओके, लेट मी फाइंड आउट हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू आंसर, एंड कितने बच्चों जो है वो आंसर्स को कैच कर रहे हैं और कौन सिर्फ पैसिवली सुन रहे हैं। Many of you are typing fear of being caught. Some of you are writing he wants some more pronouns. तो अगर और pronouns चाहिए तब तो उसको जाना चाहिए, pronouns तो Sir, वहीं पे मिले। sir, बोलो। he was afraid that Iron Master would recognize who he was. हाँ, मे बी आयरन मास्टर, मे बी ही इज नाउ मिस आइडेंटिफाइंग हिम ना, मे बी अभी उसको शायद वो मिस आइडेंटिफाई कर रहा है या फिर उसको गलत आइडेंटिफाई कर रहा है। मे बी हो सकता है कि जब घर पे वो चला जाए तो उसकी रियल आइडेंटिटी उसको पता चल जाए और वो मुसीबत में आ जाए। तो दैट इज द मेन रीजन। तो उसका मेन रीजन, उसका मेन मकसद यही है कि अगर उसमें कोई उसकी हेल्प करनी है क्रॉनर से तो वो फैक्ट्री में ही कर दे, इसकी बजाय कि वो उसके घर चले। चलिए आगे। नाउ इज नंबर 37। नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, और उसने पैडलर ने बोला, ट्रैम्प ने, रेड ट्रैप सेलर ने, कि नहीं नहीं मैं इसके बारे में नहीं सोच रहा हूँ। ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, अलार्म मींस शॉक्ड, थोड़ा शॉक्ड सा होता वो बोलता है नहीं 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 मैं ऐसे इसको इस बारे में कुछ नहीं सोच रहा हूँ। आगे चलते हैं। ही थॉट ऑफ द 30 क्रॉनर, उसने उस 30 क्रॉनर के बारे में भी सोचा जो उसने चुराए हुए थे। टू गो अप टू द मैनर हाउस, इतने बड़े घर में जाना, would be like throwing himself voluntarily means willingly knowingly into the lion's den, den गुफा जहां शेर रहता है। तो उसने क्यों बोला, ऐसे कंपैरिजन की गई है ना, तो उसने बोला अपने आप को अपने आप ही उसके घर में जाना, इसका मतलब है कि शेर की गुफा में घुस जाना है। ही ओनली वॉन्टेड अ चांस टू स्लीप हेयर इन द फॉर्ज, वो तो कहता है मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं इस फॉर्ज में, वर्कशॉप में थोड़ा सो जाऊं, एंड देन स्नीक होता है रन, रन अवे एज इनकॉन्स्पिशियसली एज पॉसिबल। अनकॉन्स्पिशियसली मीन्स विदाउट बीइंग नोटिस्ड, एक वर्ड में अननोटिस्ड या अनसीन, तो मैं बिना दिखे बिना पहचाने यहां से चुपचाप से निकल जाऊं। द आयरन मास्टर assumed दैट ही फेल्ट एम्बेरेस्ड, आयरन मास्टर ने ये अंदाजा लगाया कि शायद वो एम्बेरस फील करता है, डिसअपॉइंटेड फील कर रहा है, शेम फील कर रहा है, बिकॉज ऑफ हिज माइजरेबल क्लोथिंग, क्योंकि उसके जो कपड़े हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। प्लीज डू नॉट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम, ऐसा मत सोचो कि मेरा बहुत ही अच्छा घर है, दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, कि तुम वहां अपने आप को नहीं दिखा सकते। ही सेड एलिजाबेथ इज डेड, एलिजाबेथ मर चुकी है, एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, अब नया करेक्टर आ गया, वाइफ ऑफ आयरन मास्टर, तो शायद तुम्हें इसके बारे में पहले से ही सुना हुआ है। माई बॉयज आर अब्रॉड, और जो मेरे बेटे हैं वो अब्रॉड में हैं, विदेश में हैं, एंड देर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर, घर में कोई नहीं है बस एक सबसे बड़ी बेटिया है, एंड माई सेल्फ, और मैं हूं। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, मैं तो बस यही कहना चाह रहा था कि हमारे पास क्रिसमस में कोई भी कंपनी नहीं है। नाउ कम अलोंग विद मी, अब मेरे साथ आओ, एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर, और हमारी हेल्प करो क्रिसमस के फूड को जल्दी से डिसअपियर करने में। Means he want to say we will enjoy the dinner all together. So dear students, we will read this chapter up to this point only. Tomorrow we will continue from But the Stranger.
So all of you must revise the chapter thoroughly. Tomorrow I will ask the questions, and after that we will proceed further. For any kind of queries, you can ping me up. Till then, stay safe and stay happy.